बोला. काही प्रश्न आहे का? नाही सर, चालू करूया. ओके. सो लेट्स लुक एट सम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. मतलब जहाँ पे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते उसके टाइप. एक है आपका कॉजल कंपैरेटिव. वी ऑल नो दैट देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट phenomena. But instead of doing cause and effect standalone, we do causal and comparative, right? So we compare. So say for example, if I wanted to know why Indian people are more prone to diabetes, hmm, so it can be a study in itself, what you call it as a case study. But if I compare, say Indians with the or South Asian with the European, then it becomes more what you call of value, more attractive, more lucrative to understand. As compared to the European people, why Indian or South Asian are more prone to the diabetes. So causal comparative. Doing only cause effect or causal analysis is considered as a case study. Hmm. But if you do comparative, then it adds value to it. Then there is a survey, which we call it as a poll, sample versus census. So you will see in the next week, you will start getting the exit poll of the West Bengal, Tamil Nadu, and Pondicherry, so on and so forth. So in typical survey, you take population, census म्हणजे तुमचं population, and you take a sample and you say, for example, 3 years down the road, if the corona is eliminated, is gone. So I, as a researcher, wanted to get the perception of people about the medical services during 2020 and 2021. म्हणजे राज्यातल्या आरोग्य सेवेसंबंधी लोकांचं मत काय होतं जेव्हा हा कोरोनाचा उद्रेक झाला होता. आता लोक खूप रागावलेले आहेत. म्हणजे मोदीवरही रागवलेत, उद्धववरही सगळ्यांवरच रागवलेत कारण मरतायत लोक. तर सर्वेमध्ये काय होतं, यू ट्राई टू गेट दी परसेप्शन. वो परसेप्शन कैसा लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. वो इट्सल्फ डिटेल एक एस्पेक्ट है उसका. ते एक दोन प्रश्न विचारून होत नाही. परसेप्शन साठी आपण लिकार्ट स्केल वापरतो. स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, कांट से. ये हो गया 3 पॉइंट का. फिर आप 5 पॉइंट भी कर सकते हैं. समवॉट एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, समवॉट डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, कांट से, न्यूट्रल. तो 5 पॉइंट. फिर एक 7 पॉइंट आती है और एक 9 पॉइंट आती है. टिपिकली 5 एंड अबव का आप परसेप्शन सर्वे ले सकते हो. केस स्टडी मैंने बताया एनी टॉपिक दैट यू डू इन डेप्थ. म्हणजे आंबेडकरांनंतर झालेल्या दलित मुवमेंटचा एक सखोल अभ्यास, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, इट कुड बी एनिथिंग. सो केस स्टडी इज टिपिकली अ ब्रॉड. ऍट द सेम टाइम इट हॅज टू बी डेप्थ. त्याच्यामध्ये खोली असावी, इन डेप्थ असावी ती. Then longitudinal and correlational. Again, these are other types of research other than the so-called experimental research, where you take a certain time series data, and you conduct what you call in-depth study taking a long time series data. Say, for example, meteorological data. ज्यांना पर्जन्यमानाचा अभ्यास करायचा आहे, जे इकॉलॉजी वगैरे या विषयातले विद्यार्थी असतील किंवा काही जिओलॉजीचे लोक असतील ज्यांना खनिजांसंबंधचा अभ्यास करायचा आहे, इव्हन मॅनेजमेंटही म्हणा, तुम्ही एक 50 वर्षाचा डेटा, आजकाल डेटा मिळतोय थँक्स टू द इन्फॉर्मेशन एज अँड राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट. So you can conduct a long horizon, more than 5 decade. उसका एक स्टडी कंफर्टेबली बनता है. Then the correlational type of studies. So say as our income inequality is rising, अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, post liberalization. So if somebody wanted to really study what happened in India after the economic liberalization, or what happened to the poor people during the financial inclusion, or what happened to the Jandan account. So within your topic, you can conduct a correlational study. Those are also qualified for the doctoral dissertation. And then historical. Typically, people from art, history, they would like to conduct a literature. They would like to conduct the past study. की रामायणात काय झालं, शिवाजी महाराजांनी काय केलं, Mughal Empireचं कसं होतं. All historical study are also classified as non-experimental study. Now,
ये आपके एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है। हमारा दो ही टाइप का रिसर्च होता है, वेरी सिंपलिस्टिकली, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ऍज अ रिसर्चर हम लोगों को सबको मालूम आहे, क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे नंबर असतो, ज्याच्यात डेटा असतो. क्वालिटेटिव्ह मध्ये माहिती आणि डेटा असतो. देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. बट क्वालिटेटिव को हम इन्फॉर्म जजमेंट के थ्रू एनालाइज करते हैं, एंड हेंस एज अ रिजल्ट क्वालिटेटिव रिसर्च में मल्टीपल ट्रूथ आते हैं. मैं अगर अभी 12:30 बजे गोकुलपेट बाजार में गया, एज्यूमिंग लॉकडाउन नहीं है, बाजार चालू है, और मैंने वहां पे 250 लोग देखे, एक नजर में मेरे को पता चला 250 लोक फिरतात. मी ताबडतोब तिथे 50 लोकांना विचारलं, अहो बटाट्याचे भाव, कांद्याचे भाव, टमाटरचे भाव, आलं, अद्रक कसे आहेत. तर त्यातलं काय होईल, जे श्रीमंत लोक असतील ते म्हणतील हा ठीक आहे, चलता है भैया. पण जे गरीब असतील ते म्हणतील साहब महंगा हो गया. काही लोग जो क्वालिटी कॉन्शियस है, सर दाम उठते ही है पर क्वालिटी खराब आती है. सो जजमेंट जो होता है ये क्वालिटेटिव में वेरी होता है. ये तो मेरे पार्टिसिपेंट का जजमेंट था. हाँ, अब वो जजमेंट लेके मैंने खुद एनालाइज किया तो उसका भी मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा. इसलिए क्वालिटेटिव को कैसे याद रखने का, मल्टीपल ट्रूथ, और क्वांटिटेटिव को ऐसा याद रखने का, द ट्रूथ इज आउट देयर. जो मैंने पहले स्लाइड पे या दूसरे स्लाइड पे आपको बताया था, यू नेवर रीच द ट्रूथ इज आउट देयर, यू जस्ट मेक एन एफर्ट. तो इसको याद कैसा रखने का, क्वालिटेटिव मीन्स मल्टिपल ट्रूथ, क्वांटिटेटिव मीन्स द ट्रूथ इज आउट देयर. राहील लक्षात. आता मी तुम्हाला बेसिक डिफरन्स सांगतो जे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. यूजुअली क्वालिटेटिव में स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं लगती, क्वालिटेटिव ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, ये इसकी आसानी हो गई. बट क्वालिटेटिव रिसर्च करते समय आपका टाइम एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्लानिंग के समय कम लगता है और एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. कोणताही, आता मी, आपण ऑनलाईन आहोत, मी जर फेस टू फेस असतो ना, तर एक प्रश्न मला नेहमी सतावतो. एका विद्यापीठामध्ये 2 चॅप्टर असतात. एक चॅप्टर आहे ऑब्झर्वेशन, एक चैप्टर है फाइंडिंग, आणि एक चैप्टर है कंक्लूजन. वो कैंडिडेट वहीं पे गड़बड़ जाता कि ऑब्जर्वेशन में क्या डालूं, फाइंडिंग में क्या डालूं, और कंक्लूजन में क्या डालूं. सो द बेसिक क्वेश्चन कम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग, राइट. म्हणजे आता आहे त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये मॅन्डेटरी चॅप्टर आहे तो. बरं, तो तुम्ही 3-4 पानाचा लिहू शकता, असं नाही की तो 10-20 पानाचा असावा. पण एक काय होतं, क्वालिटेटिव्हला तुमचं एनालिसिस खूप स्ट्रॉंग लागतं, जजमेंट खूप स्ट्रॉंग लागतं, आणि ॲज वी सी इट इज लेस जनरलाइजेबल. बट the most important part of qualitative method, it is used to formulate theory or hypothesis. ये इसकी खासियत आहे. हे जरी सोपं वाटलं तरी यांनी आपल्याला थेरी बनवता येतात किंवा हायपोथिसिस बनवता येतात. समजा आता मी तुम्हाला सोपं उदाहरण सांगितलं की गेल्या 10 वर्षात मी भारतात आल्यापासून बघतोय 10वी आणि 12वी मध्ये मुलींचं गुणवत्तामध्ये याचं प्रमाण वाढलं. हा एक फिनोमिना आहे. मी ऑब्झर्व केला, हा डेटा कलेक्ट केला मी, महाराष्ट्राच्या सगळ्या जिल्ह्यांचा, 35 जिल्ह्यांचा डेटा आणला, आणि मला कळलं की ग्रामीण आणि शहरी सगळ्या जिल्ह्यात मुलींचं प्रमाण गेल्या 10 वर्षात 10वी-12वी मध्ये खूप जास्त आहे. तर याच्यावर मी थेरी बनवली. आय बिल्ट माय ओन थेरी, जो मी बेटी बचाओ बेटी पढाओ थेरी मी माझ्या नावाने पब्लिश होऊ शकते. क्वालिटेटिव्ह मध्ये तुम्हाला काय करायचा, डेटा टूल कोणते वापरायचे, फोकस ग्रुप, म्हणजे 10-20 लोकांना बोलवून त्यांना प्रश्न विचारायचे आणि ते रेकॉर्ड करायचं टेप रेकॉर्डर मध्ये किंवा लिहायचं. इन-डेप्थ इंटरव्यू, पॉलिसी मेकर, की पीपल, उनके इंटरव्यू लेना, एंड रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपको सेकेंडरी लिटरेचर में मिलेगा वो हो गया क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव ऑन दी अदर हैंड इज नंबर बेस. क्वांटिटेटिव में आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करना मैंडेटरी है एनालिसिस के लिए. क्वांटिटेटिव में आपको प्लानिंग में बहुत ज्यादा, एक्सपेरिमेंट करने से पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ता. जैसे ही एक्सपेरिमेंट हो गया, एनालिसिस आपका 2 मिनट में हो जाएगा. क्वांटिटेटिव इज हाईली रिलायबल, मोर जनरलाइजेबल, but here it is a deductive process and it is used to test pre-specified concept, construct and hypothesis that make up a theory. मतलब यहाँ जो थ्योरी बनी ना साहब लोग,
वो थ्योरी को टेस्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव मेथड यूज की जाती है। उसका एग्जांपल मैं आगे भी दूंगा, बट अभी देता हूँ। अगर मेरे को चैलेंज करना है आइजैक न्यूटन की थ्योरी को, कि आइजैक न्यूटन की थ्योरी गलत थी, G इज इक्वल टू 9.8 था ही नहीं, मैंने चैलेंज किया, तो मैंने क्वांटिटेटिव मेथड किया, और मैंने एट द एंड ऑफ माय स्टडी आई विल नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। सो अगेन, unlike here we formulate this theory, here we challenge the theory. Hmm? Here again you can use the survey, structured interview, observation, so on and so forth. So this is a basic difference between qualitative quantitative, which is again measured here. The only thing is that in quantitative our focus is on measurability, in qualitative it is on the richness of the context. Here it is more generalizable, it is more reflexive in nature. It will change. फक्त मी या गोष्टीशी सहमत नाहीये, क्वांटिटेटिव्हला लार्ज लागतात, क्वालिटेटिव्हला सुद्धा लार्ज सॅम्पल लागतात. रेस्ट वी नो दी डिफरेंस बिटवीन दैट. ओके, नाउ डिडक्टिव इंडक्टिव आपके एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है. एज ए रिसर्चर हमको मालूम होना चाहिए, जब भी हम ये दो मेथड का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. ओके, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव ये डेटा बेस्ड होती है. Our entire research is based on data. I wouldn't call it as a information, I would rather call it more specifically as a data, because without data there is no research. So be it a deductive or be it a inductive, the answer has to be data. Now how do they differ? Deductive में हम क्या करते हैं, using logic from general to specific. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, कि मेरे को 10वीं और 12वीं में गुणवत्ता यादी में आने वाली लड़कियों के बारे में क्युरियोसिटी आहे, का एकदम महाराष्ट्रातले किंवा भारतातले पोट्टे भैटाळ झाले का मुली एकदम हुशार झाल्या का, असं का होत आहे की मुली गुणवत्ता नीट यायला लागल्या. सो आय यूज अ लॉजिक फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. ओके, इट इज यूज टू जनरेट हायपोथेसिस और थेरी इन द रिसर्च. कळलं? आता इंडक्टिव्ह आहे स्पेसिफिक टू जनरल. मी आयझॅक न्यूटनच्या थेरीला चॅलेंज केलं. ही थेरी स्पेसिफिक है, G इज इक्वल टू 9.8, मैंने उसको चैलेंज किया. नाउ इट विल बी बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, वेदर माय चैलेंज एस्पेक्ट इज वैलिड और इनवैलिड, दैट इज सेकंडरी. हा, बट इंडक्टिव्ह आपल्या कागदावर लिहून ठेवा, मराठी, हिंदी, इंग्रजीमध्ये, हा थेरी टेस्ट करण्याकरता वापरला जातो. डिडक्टिव्ह हा थेरी बनवण्याकरता वापरला जातो. कळलं? इंडक्टिव्ह म्हणजे काय येईल तिकडे मागच्या स्लाइड मध्ये, इंडक्टिव्ह म्हणजे या स्लाइड मध्ये येईल हा क्वांटिटेटिव्ह, आणि डिडक्टिव्ह काय येईल क्वालिटेटिव्ह. असं लक्षात ठेवायचं. कळेल? राहील लक्षात? आता इथे याचे एक्झाम्पल दिले. तर थेरी आहेत. मी आयझॅक न्यूटनची थेरी आहे, थेरी ऑफ ग्रॅव्हिटी. मी एक्सपेरिमेंट बनवले, पॉस्ट्युलेशन लिहिले, हायपोथेसिस बनवलं, आणि मी चेक केलं की माझं आउटकम काय येतं. जर माझे सगळे हायपोथेसिस रिजेक्ट झाले तो सर आयझॅक न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रॅव्हिटी इज व्हॅलिड. Okay, so I compared with the reality and I say that yes, it is valid. On the other hand, I start observing the girls of India or Maharashtra in the 10th and 12th standard, and I saw that year on year they are coming into the merit list. Every year the percentage is increasing. So I formulated the hypothesis. I tied all the hypotheses together. I give a very general, in-depth explanation, और मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थ्योरी बन गई. ओके, राहील लक्षात? डिडक्टिव, इंडक्टिव, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. ये निचोड़ है, ये जिन लोगों को परमानेंट रिसर्च करना है लाइफ में, ये बेसिक प्रिंसिपल है अपना, ये याद रहना चाहिए. भले अपनी पीएचडी हो जावे नाही हो जावे, डझंट मॅटर, पीएचडी तर तुमची होणार आहे, पण हे बेसिक आपल्याला कळलं पाहिजे, हे त्याचं कोर आहे. आता वाजले 12:44. एक तुम्हाला 5 मिनिटात लिटरेचर सोबत कसं ट्रीटमेंट करायचं ते सांगतो. सगळ्यात पहले फाइंड इट. फाइंड का एक ही आपका तरीका है, हाई क्वालिटी इंपैक्ट फैक्टर जर्नल, जो आपको scholar.google.com पे मिलेंगे पूरे. और कुछ किताबें या कुछ जर्नल जो ऑफलाइन पब्लिश होती होगी वो, ठीक है. देन मैनेज इट. अब क्या करने का, आपको मेनी टाइम पीडीएफ में आपको वो पेपर मिलेगा. तो अडोबे एक्रोबॅट डीसी रीडर एक येतं फ्री मध्ये, 11 नंबरच्या पुढचा आहे. त्याच्यामध्ये पिवळ्या रंगाचा पेन असतो, मला वाटतं तुमच्या सगळ्यांना माहित असेल. आपली पीडीएफ फाईल उघडायची त्या पेपरची,
तुम्हाला जे वाटतं महत्वाचं आहे त्या पिवळ्या पेननी हायलाइट करून टाकायचं आणि तिथे फ्लॅग टाकून द्यायचं कि ये मैं उसका राइटिंग रिलेवेंट एनोटेशन मैं इसका इसका इस्तेमाल करूंगा। अब उसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले ठीक है ये तो हो गया, हमने हमारा क्वेश्चन डेवलप कर दिया है। अब लिटरेचर में जो चीजें मुझे मिलने वाली है वो चीजें अगर मैं एज इट इज लेना चाहता हूँ तो इट इज फाइन, पर अगर उससे कुछ अलग लेना चाहता हूँ तो मुझे आर्ग्यू करना पड़ेगा कि से फॉर एग्जांपल एक फलाना रिसर्च स्कॉलर ने उसका डेफिनेशन ऐसा दिया था, बट मैं मेरे रिसर्च में वो डेफिनेशन ऐसा ले रहा हूँ, तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैंने लिटरेचर में जो डेफिनेशन है उसको ट्विक करके मैंने अपनी डेफिनेशन क्यों बनाई। तो वो आप आर्ग्यू कर सकते हो। देन लिटरेचर का एक बेसिक पर्पस होता है जो अभी हम आगे वाले टॉपिक में भी देखेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। हम जितना भी रिसर्च कर रहे हैं इट हैज टू बी ग्राउंडेड ऑन सर्टन थेरी, बरोबर आहे। तुम्ही जे काही करत आहात तुमच्या सिनॉप्सिस मध्ये जे टायटल आहेत तुमचे त्याच्यावर सगळी थेरी ऑलरेडी जगात आहे। सो हमको लिटरेचर रिव्यू में से ये देखना है कि कौन सी थेरी से मेरा रिसर्च टॉपिक या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम रिलेट हो रहा है और उसके बाद मैं मेथड करूंगा। ऍक्च्युली ना मी एकदा येवले सर जेव्हा प्र कुलगुरू होते आणि काळे सर कुलगुरू होते मी त्यांना म्हटलं होतं हे सगळं जे आता मी तुम्हाला शिकवत आहे ना ते तुम्हाला सिनॉप्सिसच्या वेळेस मला शिकवायला खूप आवडेल। आता तुमचे 90% लोकांचे प्रबंध तयार झाले असतील त्यावेळेस त्यांनी थोडा इंटरेस्ट दाखवला, मग एकाची बदली झाली ते मुंबईला कुठतरी गेले दुसरे रिटायर झाले। मेरी दिल से तमन्ना है कि ये सिनॉप्सिस के पहले ये जो प्री पीएचडी है ना इसका असली नाम प्री पीएचडी है, मतलब पीएचडी चालू करने के पहले उसको ये ज्ञान मिलना चाहिए। पर बीच में वो हो गया, रिसर्च के वर्कशॉप होते थे और कोई कॉलेज लोगों ने उसके सर्टिफिकेट बांटना चालू किया तो वो पैसे लेके जमा करने लगे, तो इसलिए अभी ये लाया है। हा चांगला उपक्रम आहे, पण याचा वापर जर तुम्ही कामं सुरू व्हायच्या आधी केला ना तर तुमचं काम 20-30% निश्चितपणे चांगलं होऊ शकतं। मग त्याच्यावर ना मेथड डिझाइन करायची। अब जिन लोगों का हो चुका है ना वो जाके देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन सा भी रिसर्च 100.00% एक्यूरेट नहीं होता है। मैं भी अगर पीछे जाके मेरे काम को देखता हूँ ना, आज अगर मैं देखता हूँ 10 साल बाद मेरे काम को तो मैं 50% अच्छा कर सकता हूँ उसको, बिकॉज आई हैव वर्क फ्रिक्वेंटली ऑन द टॉपिक ऑफ रिसर्च इन द पास्ट 8-9 ईयर्स, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ। सो अगर आपने कुछ किया है ऑलरेडी 6-8 महीने या 1 साल पहले, अगर आपको मोटिवेशन है थोड़ा भी, अब मेथड तो आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि मेथड के ऊपर आपका क्वेश्चनर है, आपका हाइपोथेसिस है, आपका डेटा है, तो उसको तो आप कर नहीं सकते, बट ये जो आर्गुमेंट वगैरह ये आप डालना हो तो आप डाल सकते हो। अब कई बार मेरे को बच्चे पूछते कि सर चैप्टर लिखने का कैसा। तो सबसे पहले रिव्यू करते समय मैं रिव्ह्यू क्यों कर रहा हूँ ये समजणं चाहिए। आपण लिटरेचर कशाकरता रिव्ह्यू करतो, लोकांच्या व्याख्या काय आहेत, त्यांना काय त्याच्यात मिळालं, त्यांनी कोणत्या मेथड अवलंबल्या, त्यांचे लिमिटेशंस काय होते, एक ओवरऑल आता है। किसी भी रिसर्च के बाद एक आधा पेपर पब्लिश किया जाता है, कई सारे पैरामीटर्स आते हैं, तो वो अपना पर्पज है समझ लेने का। देन कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मेरे को 10, 12, 15 पेपर में एडिक्वेट कवरेज में मिल जाएगी। अब लिखते समय हा चॅप्टर पास्ट टेन्स मध्ये लिहिला जातो बरं का। चॅप्टर नंबर 2 हा लिटरेचर रिव्ह्यू असतो। चॅप्टर नंबर 1 इज अ इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 इज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो लगभग 14 पन्ने का होना चाहिए, 7 से 14 पन्ने का। चैप्टर 3 इज आपका रिसर्च मेथड और फिर 4 के बाद आपको जो भी आपका डेटा फाइंडिंग वाइंडिंग जो भी आता है वो। तो ये नंबर 2 है। तो आपको ये खुद लिखना पड़ता है। लिखने का मतलब कैसा, आपके टॉपिक में जो कीवर्ड है वो कीवर्ड की डेफिनेशन आपको लिटरेचर में कैसी मिली, आप थीसिस में वो डेफिनेशन कैसे यूज कर रहे हो, कितने लोगों ने उसके ऊपर काम किया हुआ है, उनके अप्रोचेस क्या थे, हे असं समरी फॉर्म मध्ये पास्ट टेन्स, कारण काम त्यांचं झालेलं आहे। आणि मग शेवटी समरी मध्ये तुम्हाला 2 पॅराग्राफ तुमचे टाकावे लागतात जे करंट प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये किंवा फ्युचर टेन्स मध्ये असतात। साधारण ते प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये असतात की द करंट रिसर्च is focusing on so and will be looking into these parameters and the researcher is expected to find so and so and so। तो वो एक
डेलिकेट पार्ट है, जिनको लगता है कि अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में थोडी गडबड आहे, थोड़ा सा एक बार उसको देख लेना वो सही तरीके से लिखा आहे की नाही. कारण बरेचदा काय होतं, काही एक्झामिनर हे फक्त ते बघतात आणि त्याला जर कळलं 90% लोगों को रिव्यू ऑफ लिटरेचर का चैप्टर लिखना नहीं आता, ये तथ्य है. मैं 90 बोलूंगा, ये नागपुर यूनिवर्सिटी की बात कर. पर अगर किसी 10% ने अगर ये सही लिखा ना, तो मैं आपको 99% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ उसकी रिसर्च में कोई गलतियां नहीं होगी. ये उसका ढांचा है बेसिकली. उसने समझ लिया है कि कहाँ क्या कैसे इस्तेमाल करना है. हाँ, उसके पॉपुलेशन में सैंपल में गलत हो सकता है, स्टेटिस्टिक्स में गलतियां आ सकती है, और उसका जो ढांचा रहेगा ना, ये मेथड हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो गया, वो परफेक्ट आएगा उसके रिसर्च में. सो टेक अ लुक एट योर लिटरेचर रिव्यू चैप्टर. आप कुछ सवाल होंगे तो कल मुझे आप पूछिएगा, रात को आप देख लीजिएगा. हम्म? हे ठीक आहे, याला मी ओमिट करतो. हा, आता याच्यातले बऱ्यापैकी प्रश्न रिलेव्हंट आहे, काही जणांचं तुमचं काम झालंय, बट आगे चल के अगर आप रिसर्च करोगे, पहला सवाल, वाई यू आर चूजिंग दिस, what are the pre-explored problem area, what will be my problem area, what are the new area which will be open after my study, have I studied the previous research and then gone for the title, how am I going to design my research, what will be my contribution to literature. हम्म? अब कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर का मतलब ये है कि आपका रिसर्च होने के बाद अगर मान लो सत्येंद्र वानखेड़े 2021 अगर मैं उसको साइट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका जो फाइंडिंग्स है वो उसके इधर रिसर्च पेपर से या उसके थीसिस के ऊपर जो भी पेपर लिखा गया हो उससे लेके मैंने उसको साइट किया. दैट इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इट्स सिंपलिस्टिक फॉर्म. हाँ, अगर आप थेरी वेरी बना लेते हो तो आप डॉन बन जाओगे रिसर्च के, तो आपका तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्युशन हो जाएगा. पण तुमचं बेसिक सायटेशन सुरू होणं ही तुमची कॉन्ट्रीब्युशनची पहिली स्टेप असते. ये इम्पॉर्टंट है. आपके जो भी कीवर्ड है, शाम को ये सब 5 बजे होने के बाद चाय लेने का 6 बजे पेपर पेंसिल लेने का, थीसिस का टाइटल लिखने का और कीवर्ड को अंडरलाइन करने का. तो आपके टाइटल में अगर 3 या 4 कीवर्ड हो गए तो हर एक कीवर्ड के आपको 20 आर्टिकल डाउनलोड करके रखने हैं. हाँ, scholar.google.com से, वो मस्ट है. वो आगे भी चल के मैं आपको नेक्स्ट जो अपना आज का सेशन है उसमें भी बताऊंगा वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे आपको थ्योरी का भी अंदाजा आ जाएगा. देन टाइमलाइन, हम 2021 में है. आप 1990 का डेटा लो, 98 का लो, बहुत ही जरूरी पड़ी तो 80 का लो, बट उसके पहले का लो मत. मैक्सिमम डेटा आपका जो है मोर देन 60% या 2000 के बाद का होना चाहिए, तो वो रिलिवेंट माना जाएगा. जे मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं, देयर इज अ लिंकेज बिटवीन हायपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. देयर इज अ लिंकेज बिटवीन एम, ऑब्जेक्टिव, टाइटल and hypothesis. Okay, so we should make sure that that linkage exists. Then what kind of fact, figure, statistics do we need? कितने टेबल डालना है, क्या करना है, ओवरव्यू का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 कितना लंबा लिखना है, आपकी इंफॉर्मेशन कितनी अप टू डेट करंट होनी चाहिए, कितना इंडेप्थ करना है, आपको कंफ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देना है क्या, ये आपके ऊपर डिपेंड है. अभी नए रूल के हिसाब से आपका थीसिस A4 पेज के आगे पीछे आपको प्रिंट करने की परमिशन दी गई है. तो इन सच केस किसी भी कंडीशन में आपके थीसिस में, ये मेरा व्यू है, मैं किसी भी कंडिशन नहीं बोलता, अकॉर्डिंग टू माय व्यू 175 पानापेक्षा मोठा तुमचा प्रबंध नको. त्याच्यात सगळं आलं, बिब्लियोग्राफी, रेफरन्स, एनेक्चर फॅनेक्चर सब आ गए, मतलब मोटा मोटी 350 पन्ने. बहुत हो गया. कई बार कैंडिडेट 1500 पन्ने का भी रिसर्च लेके आए, तो जरूरी नहीं है कि आपका थीसिस 2000 पन्ने का होगा तो बहुत अच्छा होगा. मैं इस व्यू का हूं, जितना ज्यादा लिखेगा उतना कचरा लिखेगा. अमेरिका में 7 पन्ने के थीसिस को प्रिंसटन वाले ने पीएचडी का डिग्री किया. 7 पन्ने का थीसिस था उसका, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर था और मैथमेटिक्स का था, त्याला मिळाली पीएचडी. सो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. आप अगर रूल ऑफ थंब पूछोगे, इंट्रोडक्शन 5 पन्ने काफी हो गए. रिव्यू ऑफ लिटरेचर मोटा मोटी 13-14 पन्ने हो गए 21 पन्ने. फिर आपका मेथड, मेथड में आप 10 पन्ने डाल दो, आपके हो गए 23, 25, 30 पन्ने पकड़ लेंगे, 30-35. ये जो बचा हुआ है आपका आगे का, उसके आप मोटा मोटी 100 पन्ने पकड़ लो, हो गए 150 पन्ने. फिर आपका रेफरन्स, बिब्लियोग्राफी, अजून काय लागतं, ती रिच इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे. उगाच गावाभराच्या खबऱ्या नाही छापायच्या.
जे आहे टू द पॉइंट लिहायचं. टू द पॉइंट लिहिणं महत्वाचं असतं. ते थिसिस आहे म्हणून किती नाही, पण ते रिजनेबली 300-350 पानाचा तो असावा. गॉट इट. आपको अल्मनैक, एनसाइक्लोपीडिया ये सब देखना है. आपका परमानेंट दोस्त है गूगल स्कॉलर, ऑलवेज. और अगर आप 5 साल में कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस अगर आपको दिखती है आपके टॉपिक से रिलेटेड, पक्का होती होंगी इंडिया में कहीं भी, जाइएगा. 3-4 दिन बैठने का, लेक्चर सब सुनने का, वहाँ का डेटा सीडी वीडी जो भी देते हैं वो लेके आने का, अपना काम करने का. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू. हाँ, इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया कि क्रेडिबिलिटी है क्या ऑथर की, क्या मैं उसका ले लूँ क्या, राइट. फिर वो जो आर्टिकल है वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था या ऐसी आर्टिकल है, क्या वो पीयर रिव्यू जर्नल था या स्कॉलरी था या अदरवाइज था या किसी की वेबसाईट से लिया हुआ आहे. मी बरेचदा काही लोकांच्या ब्लॉगवरनं वगैरे लिहितो. माझ्या रिसर्चवरील बरेचदा ऑब्जेक्शन घेतात ते की तुम्ही, एकदा मी ब्राझीलच्या एका इकॉनॉमिस्टचं घेतलं होतं, तर ते एक सरकारचा प्रोजेक्ट होता. ते म्हणे हे कोण आहेत, यांचं काही आहे का, म्हटलं काही नाहीये. त्यांचे व्ह्यू तुम्ही का घेतले, म्हटलं मला आवडले, मला त्यांनी ते काढायला लावले. तो ऐसा होता है कि ओनली एस्टेब्लिश्ड लोगों के व्यू लो. लो, क्योंकि आप अगर ऐसे अननोन लोगों के लेंगे तो फिर होगा कुछ नहीं. पर जब आपको कोई पैसा दे के आपसे रिसर्च करवाएगा ना, तो वो ऑब्जेक्शन देते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों. पीएचडी में उतने इश्यू नहीं आएंगे, पण ती एक सवय लावून द्या की मी माहिती योग्य प्रकारची टाकेल. सो इन अ नटशेल, it is basically a product of systematic study of significant problem. The finished product will evidence originality, जे तुम्ही डिक्लेरेशन देता. क्रिटिकल अँड इंडिपेंडंट थिंकिंग हे आवश्यक असतं बरं का. हे मैं मेरे एमबीए के बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, डिग्री डिग्री आहे हो, पण तुम्ही क्रिटिकली विचार करू शकता का, तुम्ही इंडिपेंडेंटली विचार करू शकता का, हे डिग्रीपेक्षा मला महत्वाचं वाटतं आजच्या जगामध्ये. हे करता आलं पाहिजे. त्याचा एक फॉर्मॅट असावा आणि त्याचं खरं डॉक्युमेंटेशन असावं. युअर थिसिस शुड क्रिएट अ न्यू नॉलेज, एक्सटेंड दी एक्झिस्टिंग नॉलेज. हा त्याचा एक आहे. तुम्ही तुमच्या विद्यापीठाचे जे नियम आहेत त्याप्रमाणे बघा. यू कॅन do the format according to the PhD scale of respective university. So, understanding of research, basic research, is a first step towards selection of target. Information is a key aspect. Entire research is based on data and information. So we have to be cautious about what we are taking, what we are not taking. Keep your research simple and focused. एक इपिक्टेटस नावाचा एक फिलॉसॉफर होता. त्याचं वाक्य मी मागच्या सेशन पासून टाकायला सुरुवात केली. त्यांनी लिहिलं होतं, गेट एज्युकेटेड. टू अक्यूज अदर्स फॉर वन्स ओन मिसफॉर्च्यून इज अ साइन ऑफ वांट ऑफ एजुकेशन. आप अगर आपके बदकिस्मती के लिए किसी को अगर दोष दे रहे हो तो आपको शिक्षा की जरूरत है. टू अक्यूज वन सेल्फ शोज दैट वन एजुकेशन हैज बिगन. आप अपने आप को ही कोसोगे तो आपकी शिक्षा कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है. To accuse neither oneself nor other shows that your education is complete. आप किसी को नहीं कोसोगे तो आपकी शिक्षा ये पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण हो चुकी है. ठीक है. So a person who never made a mistake never tried anything new. चुका करा, ये नहीं म्हणत. I like, even मैं जब कॉर्पोरेट में था, we used to encourage people to make mistake, but then learn, don't repeat them, but try something new and do it. ओके. सो ये हो गया आज का हमारा पहला सेशन. आता एक्झॅक्ट 1 वाजले. दुसऱ्या याच्यात फक्त 20 की 15 स्लाइड्स आहेत. ते लगेच संपेल आणि मग मी तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर करता वेळ देतो. ठीक आहे. 1 मिनिट. ये दिख रहा है क्या, पहले बताओ. इज इट विजिबल? sir. हेलो. Sir, Yes, sir. ओके. So Theoretical frame. we will talk about a theoretical framework. आप में से मोर देन 50% लोगों को ये समझेगा नहीं. इट्स ओके. नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इट इज बेटर not to understand at all than understand something half and do the mistake. Theoretical framework सोप्या भाषेमध्ये
थोडा मी मराठीचा याच्यात वापर करेल. तुमच्या घराचा आराखडा असतो ना, घर बांधायच्या आधी आर्किटेक्ट एक डिझाईन बनवतो, तसंच रिसर्च करायच्या आधी आपण एक आराखडा बनवतो. त्याला इंग्रजीमध्ये थेरोटिकल फ्रेमवर्क म्हणतात. सो थेरोटिकल मतलब क्या, वो थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. क्योंकि हमारा रिसर्च एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, तो वो थ्योरी का पार्ट हो गया. फ्रेमवर्क मतलब क्या, अ सेट ऑफ बाउंड्रीज, लक्ष्मण रेखा, उसके अंदर ही मेरे को काम करना है. सो आज हम टीएफ, थेरोटिकल फ्रेमवर्क को मैं टीएफ बोलूंगा, और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सीएफ. आपके ऑनलाइन एग्जाम में इसके ऊपर एक आध दूसरा सवाल आ सकता है, तो ज्यादा टेंशन इसका मत लो. थेरोटिकल फ्रेमवर्क काय असतं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड कन्सेप्ट, just like a theory, but not necessarily so worked out. It guides your research in determining what you will measure and what statistical relationship you will look for. अगर अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पीएचडी में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डालना मैंडेटरी नहीं है, बट आप पीएचडी के बाद अगर रिसर्च करते होंगे, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो रिसर्च करते समय ग्रांट कोई अगर आपको देता है, तो वहां मैंडेटरी है कि मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डालूंगा. सो आप में से, मतलब ये जब से हमने चालू किया है प्री पीएचडी प्रोग्राम, अपने एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में जितने भी पार्टिसिपेंट आते थे, मैं कंफर्टेबली कहूंगा कि 25 से 30 लोगों ने उनके थीसिस में डाला है. आप ये थीसिस में डाल सकते हैं अगर आप उसको A4 पन्ने पे बनाने की कोशिश करोगे, तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर 3 के शुरुआत में डाल सकते हैं. त्यानी क्या होता, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मेरे को तुरंत पता चलेगा आप क्या मेजर कर रहे हो और आप क्या रिलेशनशिप देख रहे हो. तो मेरे को तुरंत पता चलेगा आपका हाइपोथेसिस, आपका एम, आपका ऑब्जेक्ट, ये सब अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल तुरंत पता चलेगा. तो एग्जामिनर अगर थोड़ा जीनियस होगा तो वो 5-6 पन्ने आपका पढ़ेगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देख के आपको ओके बोल के बोलेगा यहाँ हो गया, इसको वाइवा के लिए बुलाओ. तो इट इज अ वेरी पॉवरफुल टूल. आपण आता बघू ते कसं करायचं. अब देखो, जो कि अभी हम ऑफलाइन मोड में है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने की मैं आपको स्टेप बताता हूँ, वैसे आपको करना है. A4 पेपर पे अपने थीसिस का टाइटल लिखने का. टाइटल लिखने के बाद उसमें जो कीवर्ड है, पहले कीवर्ड को ब्लू पेन से अंडरलाइन करना. जितने भी 3 कीवर्ड हो गए, ब्लू पेन से अंडरलाइन किया आपने, राइट. फिर आप नीचे जाने का और वर्टिकली वो 3 कीवर्ड को लिखने का, एक के नीचे एक के नीचे एक. ये हो गया. अब वो जो कीवर्ड है आपके 1 2 3, उससे रिलेटेड आपको थ्योरी कौन सी है दुनिया में, वो थ्योरी अगर उससे रिलेटेड कोई है तो वो scholar.google.com पे देखने का. सो अगर आपके पहले कीवर्ड की आपको थ्योरी मिल गई, तो वो जो कीवर्ड आपने नीचे लिखा है उसके सामने डैश T1 AD1 और ब्रैकेट में जिसके नाम की थ्योरी है, कब पब्लिश हुई, वो ब्रैकेट कंप्लीट. वैसे ही कीवर्ड 2 कीवर्ड 3 को करना. ये हो गया पहला काम. सेकंड, आपको भी लाल पेन लेने का है और आपको देखना है आपके टाइटल में, थीसिस के टाइटल में कंसेप्ट कौन से है. एक या दो तो कंसेप्ट हो गए पक्का, तो आपको वो एक या दो कंसेप्ट को लाल पेन से अंडरलाइन करना है. अब आपको, जैसे आपने पहले कीवर्ड लिखे, उसके सामने T1 T2 T3 लिखा, नीचे आपको कंसेप्ट 1 के सामने C1 लिखने का है. कंसेप्ट का नाम C1. वो कंसेप्ट से रिलेटेड थ्योरी होंगी नहीं होंगी फर्क नहीं पड़ता, होंगी तो अच्छा, नहीं होंगी तो और अच्छा. नीचे के लाइन में अभी आपको देखना है इंटर रिलेशन कहीं है क्या. मतलब आपके टाइटल में जितने भी कीवर्ड और कंसेप्ट आते हैं हे इंटर रिलेटेड आहेत का. 90% हे असलेच पाहिजे जर तुमचं प्रॉपर टायटल असेल तर. आणि आरआरसी कमिटीचं तेच काम असतं की टायटल व्हेरीफाय करणं. मग इंटर रिलेशन जे आहे ते खाली लिहायचे की कोणते कन्सेप्ट आणि कोणती थेरी हे इंटर रिलेटेड आहे. आता हे आपण घेतलं. आता काय करायचं, याला डायग्राम मध्ये कन्वर्ट करायचं. जैसा आप सब्जी काटने से पहले अलग हल्दी, अलग मिर्ची, अलग सब्जी सब रखते ना बर्तन में, ये अपन ने अभी अलग सब्जी रख दी, अभी अपने को इसकी सब्जी बनाने की है कढ़ाई में डाल के.
अभी आपण इसकी डायग्राम बनाएंगे. तर तुम्ही सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वेअर, रेक्टँगल काही वापरू शकता. ते कन्सेप्ट जे असतील त्याला एरोनी दाखवायचं. थेरी जी असतील ती त्या बॉक्सच्या खाली लिहायची आणि खाली फक्त त्याचं नाव आणि वर्ष, टी ब्रॅड स्मिथ 1942, समझ जाएगा कि ये टी ब्रैड स्मिथ की थ्योरी है. वैसा करने का वो आपका एक रफली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है. मैं आपको आगे उसका एग्जाम्पल भी दूंगा. अब ये मैंने आपको अभी इलेबोरेट किया हुआ है. ये क्या करता है, ये आपके जो आपका फ्रेमवर्क होता है ना, ये आपके स्टडी के साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देता है. मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हो दैट इज साइंटिफिक. और ये भी बताता है कि योर रिसर्च इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द ब्लू. हवा से आप रिसर्च नहीं निकाल रहे हो. इट इज ऑल ग्राउंडेड एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक. हा अतिशय सुंदर कन्सेप्ट आहे बरं का रिसर्चचा. हे जर तुम्ही केलं तर तुमच्या चुका अगदी नगण्य होतील, कमीत कमी होतील. हे नाही म्हणत चुका नाही होणार, पण वाचणाऱ्यालाही कळतं की तुम्ही एका ग्राउंडेड थेरीवर काम करतात, त्याच्यातनं एखादी नवीन थेरी येऊ शकतं. इव्हॅल्युएटरला याचा खूप फायदा होतो. आता कन्सेप्ट बघा, जैसे जॉब सैटिस्फैक्शन, स्किल गैप, कस्टमर लॉयल्टी, रिस्क रिटर्न, अनेक कंसेप्ट आते हैं. आपके टाइटल में भी ऐसे कोई कंसेप्ट हो गए. लिंक ऑल दिस टू टाइटल, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड टू हाइपोथेसिस. होना ही चाहिए. अगर आज की तारीख में नहीं होगा तो वो आपकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती आप ही डिसाइड करो. बट आगे चल के जब आप रिसर्च करोगे तो कंसेप्ट भी ये सब लिंक होने चाहिए. नाउ द क्वेश्चन कम कि व्हाट डू वी मीन बाय जॉब सेटिस्फैक्शन. देयर आर 100 पैरामीटर्स. मेरे को अच्छी सैलरी मिलती, मेरे को अच्छा रिकॉग्निशन मिलता, मेरे को अच्छी छुट्टियां मिलती, सोसाइटी में मेरी इज्जत है, मेरे कलीग मेरी इज्जत करते हैं, राइट. तो all these forms a concept of job satisfaction. There cannot be only one parameter that makes you satisfied. There are more than one parameter, right. Similarly, ये जितने भी concept है इसमें more than one parameter impact करता है वो concept को define करने में. तो अब मैं exactly क्या measure करूंगा ये मुझे मालूम होना चाहिए. अगर मैं जॉब सॅटिस्फॅक्शन, आमचे मॅनेजमेंटचे मुलं जेव्हा आणतात असा थिसिसचं टायटल वगैरे, अरे बाबा पण तू त्याच्यात काय मेजर करणार आहे. त्याचे 100 सब पॅरामीटर आहेत. मग तू त्याच्यातले 5 घे आणि ते जे कन्सेप्ट जे बनवलं आहे थेरॉटिकल फ्रेमवर्क मध्ये तिथे ते एका खाली एक लिही 5. म्हणजे मी जेव्हा तुझं थेरॉटिकल फ्रेमवर्क वाचेल मला कळेल की तू जॉब सॅटिस्फॅक्शनचे हे 5 कन्सेप्ट टेस्ट करणार आहे. गॉट इट. सो इसीलिए कंसेप्ट का आपके टाइटल से लिंक होना. तो थेरी तो थेरी बताएगा मुझे T1, T2, T3, तो वो मेरे को एक अश्योरेंस देगा कि मैं थेरी, ग्राउंडेड थेरी पे काम कर रहा हूँ. कंसेप्ट मेरे टायटल, ऑब्जेक्टिव्ह और हायपोथेसिस को ड्राइव करेगी. हा त्याच्यातला इंटर रिलेशन आहे. अब लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने का, उसके लिए मतलब लिंकेजेस का मतलब क्या, आपके थेरी और आपके कंसेप्ट लिंक कैसे है. तो सबसे पहले आपको ये लिटरेचर रिव्ह्यू में जाके देखना है की तुम्ही जॉब सॅटिस्फॅक्शन फॉर एक्झाम्पल हा कन्सेप्ट असेल, तुम्ही त्याला कसे डिफाईन केलाय. मग मी त्याचे फक्त 5 सब पॅरामीटर घेतले. मला तेवढेच पाहिजेत, मला सगळे नको, का घेऊ मी सगळे, मी तेवढेच घेतले. मग त्याची व्याख्या, आता 1000 लोकांनी जॉब सॅटिस्फॅक्शनची व्याख्या केली असेल, मी त्या कम्पेअर करेल, 5 ते 6 व्याख्या मी कम्पेअर करेल बरं का. लिटर मला सगळ्यांचं करायचं नाहीये. आणि माझी जी मी व्याख्या म्हटली आहे, given the ruler nature of Vidarbha, given the limitation of time frame, the researcher have decided to use parameter A, B, C, D and E as a critical parameter to understand the concept of job satisfaction with regard to current research in the process. Hence, researcher would like to define job satisfaction in this context as blah 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 blah. झाली तुमची व्याख्या तयार. मग choose the definition that best fits your research and just. अगर आपको खुद की व्याख्या बनाने की नहीं, व्याख्या म्हणजे मराठी मध्ये व्याख्या इज डेफिनेशन. अगर आपको खुद का डेफिनेशन नहीं बनाने का है, लिटरेचर रिव्यू से ले लो, जो आपको लगता है अच्छा सूट हो रहा है ले लो. कोई जरूरी नहीं आपको खुद का कुछ करना है.
लिटरेचर से लो, जिसकी वो डेफिनेशन थी उसको साइट करो, एक तो फुटनोट में साइट करो, एक तो बिब्लियोग्राफी में साइट करो, आगे चलो. It is very important to indicate if there are any notable links between these concepts. अगर आपके टायटल में म्हणजे आमचे इथे मॅनेजमेंटचे पोर आहेत का रे? आहेत का कोणी मॅनेजमेंटचं इथे? आहे क्या? मॅनेजमेंट कॉमर्स वाला कोई है? हो सर आहेत कॉमर्सचे आहेत है ना? पार्टिसिपेंट. हाँ हो हाँ. वो मोस्टली क्या होता है, कॉमर्स और मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में और सोशल साइंस में देर आर मोर देन वन कंसेप्ट. तो हमको ये देखना है ये कंसेप्ट टू कंसेप्ट लिंक है क्या. कंसेप्ट टू कंसेप्ट अगर लिंक होगा तो आपको वापस जो है डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी. अगर गलती से एक ही कंसेप्ट है आपके इसमें तो यू आर सेफ. बट इफ देर आर मोर देन वन कंसेप्ट then make sure you find the linkage between the concept. C1, C2, C1, C3, C2, C3 बघायचं, कागदावर लिहून बघायचं. Apart from that, you should describe any relevant theory and model that relates to your key concept and argue why you are or you are not applying them. दुनिया में स्पेशली मैनेजमेंट के लोग याद रखो, कॉमर्स मैनेजमेंट, आपको हजारों मॉडल मिलेंगे. जो भी टॉपिक आपका है ना, हजारों मॉडल मिलेंगे. अब एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, अगर मेरे जैसा गाइड, मैं गाइड किसी का नहीं बनता आणि मी खूप स्ट्रिक्ट आहे, थोडा तेडा डोक्याचा माणूस आहे, ते मॉडेल अप्लाय करून बघायचं. आणि ते मॉडेल अप्लाय केल्यावर ते जर बसत नसेल तर त्या मॉडेलला मॉडिफाय करून स्वतःचं मॉडेल बनवायचं, जे मी माझ्या थिसिस मध्ये केलंय. अप्लिकेशन ऑफ मॉडेल इज व्हेरी इंपॉर्टंट. And if it doesn't work, then you make your own model and that becomes your intellectual property and contribution to literature. अगर आप में से जो भी मैनेजमेंट कॉमर्स का यहाँ पे बैठा है, आप अगर अर्ली स्टेज में हो आपके रिसर्च के, तो आई स्ट्रॉंगली रिकमेंड यू टू टेक एनी मॉडेल. हे सगळे मॉडेल अवेलेबल आहेत आणि आपण कोणाचं मॉडेल घ्यायचं, मॅच्युअर कंट्री, अमेरिका किंवा युरोप, कारण आपण डेव्हलपिंग कंट्री आहोत, त्यांचे मॅच्युअर वर झालेत. तुम्हाला जर इमर्जिंग मध्ये बघायचं असेल तर तुम्ही साऊथ आफ्रिका किंवा चायनाचं मॉडेल बघू शकता. पण टेक टिपिकली ए मॅच्युअर, बिकॉज मॅच्युअर मॉडेल्स आर टेस्टेड, यू अमेंड इट टू दी डेवलपिंग लेवल, आपका रिसर्च टॉप क्लास बनता है. बिहार के भाषा में लल्लन टॉप बन जाता है. मॉडल अप्लाई करके देखो. ये साइंस के लोग जो होते हैं ना, अल्गोरिदम वगैरह वाले सॉफ्ट, ये वही काम करते हैं. बट अगर अपने सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स मैनेजमेंट के लोग मॉडल अगर करोगे ना, आपका रिसर्च आधा वैसे ही ऑल राइट हो जाता है. बट इज अप टू यू टू डू इट और नॉट. नाउ फ्रेमवर्क मी तुम्हाला सांगितलंय, पण आता कसं करायचं. हाँ, ये आपको जो है हाँ, आप इसको 5 पन्ने में लिख सकते हैं, बट मैं आपको लिखना रिकमेंड नहीं करूंगा. A4 के आधे पन्ने में डायग्राम बनाने का, एरो वारो देके ऐसी डायग्राम जो केवल आपको समजेगी, किसी और को नहीं समजेगी. कधी जेव्हा आपण भेटू तेव्हा मी माझे दाखवेल, माझे फ्रेमवर्क फक्त मला कळतात आणि खाली मी लिहितो सोर्स डेव्हलप बाय ऑथर 2021. आपको वो डिफेंड करना नहीं चाहिए, वो आपका फ्रेमवर्क होता है. ते कॉम्प्लिकेटेड बनवायचं, पण ऍट द सेम टाइम सोपंही बनवायचं, जेणेकरून कळेल, जो अत्यंत हुशार असेल कळेल, जो कमी नॉलेजचा असेल उसको फ्रेमवर्क नहीं समझता. तो आप आधे पन्ने के डायग्राम में वो बनाने का, अगर आप कोशिश करोगे आज रात को, हाँ, तो ईमेल करो मेरे को या मैडम को भेजो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर रात को कमेंट करके कर दूंगा. पिछले और उसके पिछले बैच में मेरे को रात को एक एक दो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भेजे थे. पहले अटेम्प्ट में आप 50% कर पाओगे, मोर देन इनफ. फिर आप उसको रिफाइन करोगे तो आप 70, 80, 90% तक जाओगे. दैट इज, मी सुद्धा आता 80-90% पर्यंतच करतो. 100% फ्रेमवर्क मुश्किल होतं. इट डिफर्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड टॉपिक टू टॉपिक, है ना. अब मैं आपको ये एक सॅम्पल थेरॉटिकल फ्रेमवर्क देतो. हे इतकं सोपं आहे साहेब. होमेसिन नावाच्या माणसाने, अलाव मी थोड़ा तो मराठीत सांगतो मी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉडल उसने बनाया. अब जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन है ना, वैसी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के 1000 डेफिनेशन है. कम में बम, अच्छा क्वालिटी, लॉन्ग लाइफ, गुड आफ्टर सेल सर्विस, गुड रीसेल वैल्यू. देर आर एन नंबर ऑफ पैरामीटर दैट कैन सेटिस्फाई द कस्टमर. तो उसने क्या किया, टोमेसिन ने, उसने 4 पैरामीटर लिए और वैल्यू प्रपोजिशन के 2 पैरामीटर लिए और उसने उसका सीएस का मॉडल बनाया.
सबसे जो की होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, वैल्यू प्रपोजिशन। मैं अगर आपको बोलूंगा कि मुझे 10,000 रुपए में मेड इन चाइना की एक चीज मिल रही है और 12,000 रुपए में अगर मेड इन अमेरिका मिल रही है, तो मेरे जैसा आदमी 12,000 रुपए में मेड इन अमेरिका लूंगा. हे का मी तुम्हाला सांगतोय, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, आमच्या घरी एक सिनियर सिटीजन पॉझिटिव्ह आहे. टचवूड अजूनही ते चांगले आहेत. तर काल आम्ही विचार केला, इकडे खूप जणांना झालेला आहे धरणपेठमध्ये, तर आम्ही ते ऑक्सिजनचं मशीन असतं ना, ते घरच्या घरी इथे बऱ्याच लोकांनी घेतले, पण त्यांना ते लागत आहे. ते ऑक्सिजन मशीन आता दवाखान्यात नाही तर आपल्या घरी ते मशीन असावं. मी तुम्हाला सांगतोय बरं का, या देशातली सरकार आपल्यासाठी काही करणार नाही. आपल्याला आपलीच व्यवस्था बघायची आहे, एक्सेप्ट रेमडेसिवियर, पण ऑक्सिजन घरी असावं. तर काल आम्ही प्रयत्न सुरू केले. तर एक फिलिप्सचं मशीन मिळतं 33,000 रुपयाचं, ते अमेरिकेतनं इम्पोर्ट होतं, आणि एक चायनाचं आहे जे रेडीली नागपूरमध्ये अवेलेबल आहे 25,000चं. तर ते म्हणे साहेब चायना का, हमको चायना नाही चाहिए. मग आम्ही ते अमरावतीमधनं आता 2 मशीन आज सकाळी ऑर्डर टाकलेली आहे. तर आम्हाला ते उद्या दुपारपर्यंत किंवा परवा रामनवमीच्या दिवशी ते मशीन आमच्याकडे येऊन जातील. तर सगळ्यात पहिले कस्टमर काय बघ, आणि तो ब्रँड होता फिलिप्स आणि मेड इन अमेरिका होता, अमेरिकेतनं इम्पोर्ट झालेलं मशीन आहे. त्याच्यामुळे आपण जो ऑक्सिजन घेणार आहे 5 लिटर पर मिनिट, आपल्या शरीरात तो चांगला ऑक्सिजन गेला पाहिजे. तर कस्टमर सबसे पहिले काय देखताय, व्हॅल्यू प्रपोजिशन. म्हणजे काय, नीड एक्सपेक्टेशन, काय हवं आहे काय अपेक्षा आहेत, आणि अनुभव. या 2 पॅरामीटरवर आता हे टोमॅसीनी ठरवलं, तुम्ही अजून काही ठरवू शकता बरं का तुमच्या हिशोबाने. आणि त्यांनी त्याला वीकली मेजर केलं, अँड देन ही डिटर्मिन दी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट ही टूक एज अ 4 पैरामीटर इज अ वर्ड ऑफ माउथ. मुझे किसने बताया कि वो ढाबा अच्छा है, वहां पे खाओ, मैं गया, अच्छा लगा. पर्सनल नीड, जैसे ये ऑक्सीजन की मशीन हो गई, मेरे को यही चाहिए, यही अच्छी लगी, आई एम सेटिस्फाइड. पास्ट एक्सपीरियंस, कहीं और जबलपुर रोड पे खाना खाया था 2 साल पहले, अच्छा था, मैं अभी वहां खाऊंगा. या मैंने नोकिया का फोन इस्तेमाल किया था, अच्छा था, मैं दूसरा भी नोकिया का फोन लूंगा. एंड देन पीआर एंड मार्केटिंग, त्याची जाहिरात होते हैं, ब्ला 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 ब्ला. यांनी 4 पॅरामीटरवर नीड, एक्सपेक्टेशन आणि अनुभव याच्यावरनं त्यांनी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन काढलं. म्हणजे आपल्याला कळतं तो काय मेजर करणार आहे, एक्सपिरियन्स आणि नीड एक्सपेक्टेशन. कशावर, वीकली, दर आठवड्याला तुम्ही सॅटिस्फाईड आहात का. कारण सॅटिस्फॅक्शन किंवा हॅपीनेस हे मोमेंटरीली असतं. परपेच्युअल सॅटिस्फाईड असे फार कमी, म्हणजे ज्यांचे ब्रँड ठरले आहेत त्यांना ठराविक ब्रँडची दारू लागते, ठराविक ब्रँडची सिगरेट लागते, ठराविक ब्रँडचा तंबाखू लागतो. दे आर परपेच्युअली सॅटिस्फाईड बिकॉज दे आर स्टिक टू देअर ब्रँड. पण इन जनरल तुम्ही बघितलं तो सैटिस्फैक्शन कैन वेरी. सो ये एक सैटिस्फैक्शन का टोमॅसी ने बनाया हुआ मॉडल. गॉट इट. अब चलते कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. आता थेरोटिकल फ्रेमवर्क तुमच्या परीक्षेच्या एंगलनी ऐसा ख्याल में रखने का, थेरोटिकल फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थेरी और थेरी. ये सेंटेंस को याद रख लो. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये आप डेव्हलप कर सकते हो बेस्ड ऑन द थेरी. राहील लक्षात. टीएफ हे एक्झिस्टिंग थेरी किंवा थेरीजवर बनलं असतं. सीएफ हे तुम्ही डेव्हलप करू शकता थेरीवरनं. गॉट इट. हा त्याच्यातला बेसिक फरक आहे, म्हणून त्याला आपण कन्सेप्च्युअल म्हणतो. कारण कन्सेप्च्युअल म्हणजे काय, ग्राउंडेड थेरीने तुम्ही त्याला मॉडिफाय केलंय, तुम्ही एक एक्झिस्टिंग थेरीवरनं काहीतरी पुढे बनवलंय, म्हणून ते कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क ते झालेलं आहे. सो बरेचदा काय होतं, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी स्टडी में जो कैंडिडेट रिसर्च करता है, तो उसमें देर आर चॉइसेस अबाउट द फिनोमिना एंड वेरिएबल टू ऑब्जर्व एट द लेवल ऑफ डिटेल, कि कितने डिटेल में मुझे देखना है. जैसे साइंस के लोग मुझे पूछते कि सर हम एक्सपेरिमेंट कितने बार करें, 1 बार करें, 100 बार करें, 200 बार करें, फाइंडिंग वही आती है. सो पॉइंट इज दैट ऑल इंपिरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन एजम्पशन, जिसको हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. हाइपोथेसिस आपका एंड गेम है, बट उसका अंडरलाइंग क्राइटेरिया एजम्पशंस है. सो एनी रिसर्चर हु इज प्लानिंग एन इंपिरिकल स्टडी, they confront the challenge of making these assumptions explicit, examining them critically, and designing the investigation to yield data that permit those assumptions to be evaluated and modified appropriately. कळत नसेल तर टेन्शन घेऊ नका, सोप्या भाषेत सांगतोय की जेव्हा तुम्ही एक्सप्लोर, आता आज सोमवार, आज
अमेरिकेत सोमवार आहे. आज मंगळावर एक हेलिकॉप्टर उतरणार आहे बरं का. तुम्ही जे सायन्स प्रेमी आहात ना, बघाल. मी सुद्धा त्याची वाट बघतोय की ते आपल्याला युट्यूबवर केव्हा बघाल. आता ते मिळणार. आता मंगळावर हे एक्सप्लोरेटरी स्टडी आहे, तर त्याच्यासाठी त्यांचे काही एक्सप्लिसिट अझम्पशन आहेत. त्यांनी काही असे डिझाईन केले आहेत की सो दॅट व्हॉट एव्हर डेटा दे गेट इट कॅन बी इव्हॅल्युएटेड अँड मॉडिफाईड अप्रॉप्रिएटली. तर आज हे जो खरोखर हेलिकॉप्टर उतरलं, ऑलरेडी तिथे एक रोव्हर आहे, त्याची सेल्फी आली होती मागच्या आठवड्यात. तर हे हेलिकॉप्टर काय करणार आपल्याला कळेल. सो तुम्ही जेव्हा एक्सप्लोरेटरी स्टडीमध्ये जातात, तर तेव्हा तुम्हाला थेरॉटिकल फ्रेमवर्क, हे स्पेशली रिसर्च ग्रांट जो आपण टॉपिक उद्या कव्हर करणार आहोत ना, त्यासाठी थेरॉटिकल फ्रेमवर्क हे लागतं. थेरी कन्स्ट्रक्शन मध्ये ते वापरलं जातं. हे संपलं का? आता काय होतं, अनफॉर्च्युनेटली although all the research is based on theory, many grant proposal lack well developed critical theoretical rationale. जेव्हा उद्या आपण डिस्कस करू ना, बरेचदा अनथेरॉटिकल रिलेटेड तुम्ही प्रपोजल पाठवता आणि ते रिजेक्ट व्हायचे चान्सेस असतात. त्याच्यामुळे रिसर्च हे थेरी बेस्ड असावं. and the TF often remains implicit in the proposal without being formally articulated. अगर आपने उसको फॉर्मूली उसका डायग्राम नहीं बनाया, तो वो आपके प्रपोजल में इम्प्लिसिट रहता है. बट आपको ये एक हैबिट करना है कि वो डायग्राम बनाने का है. मेक दैट हैबिट. आई हैव मेड दैट हैबिट and till now I have made 7 or 8 theoretical framework for grant proposals and the research subsequently which we have completed, right? So consequently, even though the application may be based on good idea, it is conceptually weak and receive poor priority और impact. कई बार क्या होता है कि एक आइडिया के ऊपर आपने वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया, आइडिया अच्छी है, बट कंसेप्चुअली वो वीक है. अब से फॉर एग्जांपल, ये अगर हम फार्माकोलॉजी और बायोलॉजी की बात करेंगे, कोरोना प्रिलिमिनरी डेटा उद्या याच्यावर आपण डिस्कस करू. बरेचदा प्रिलिमिनरी डेटा नसतो. तो प्रिलिमिनरी डेटा नाही, तर तुम्ही थेरॉटिकल फ्रेमवर्क एका आयडियावर आणू शकता, कारण कोणीतरी थेरी बनवली आहे, त्याची 1-2 थेरी आहेत, पण कन्सेप्च्युअली तो वीक आहे आणि म्हणून ते रिजेक्ट होतं किंवा त्याला प्रायोरिटी दिली जात नाही, किंवा त्याचा स्कोअरचा जो इम्पॅक्ट स्कोअर म्हणतात त्याला कमी व्हॅल्यूचा स्कोअर तो दिला जातो. डोंट टेक अ टेन्शन. सोप्या भाषेत 2 शब्दात तुम्हाला सांगतो, थेरॉटिकल फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन अ ग्राउंडेड थेरी. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये थेरी को मॉडिफाई बना के किया जाता है. हे एक्झामिनेशनच्या अँगलनी लक्षात ठेवायचं. संध्याकाळी जर तुम्हाला इच्छा असेल तर तुम्ही टायटल घेऊन T1, T2, T3, C1, C2 ते घ्या, एखादी डायग्राम बनवा, त्याचा फोटो काढा, प्रीती मॅडमला व्हॉट्सअप करा. हा नंबर माझा बंदवाला नंबर आहे, ईमेल आहे. तुम्ही मला तो फोटो ईमेल करा किंवा प्रीती मॅडमला तो ईमेल करा आणि मी मग त्याच्यावर तुम्हाला कॉमेंट देऊ शकेल. आता आपल्याकडे 7 मिनिटं आहेत. तुमचे जर आजचे काही प्रश्न असतील तर मला विचारा. कोई भी सवाल होगा आज का जो आपको समझा नहीं होगा या आपको जानने की कोशिश और करना है, मैं आपको बताऊंगा. आहेत का काही प्रश्न? निखिल सर, प्रियंका साडा या. बहुत से बार रिसर्च में थियोरेटिकल बैकग्राउंड टर्म भी यूज किया जाता है इंट्रोडक्शन में, तो दिस थियोरेटिकल बैकग्राउंड इज डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. यस, बैकग्राउंड बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी थ्योरी इन एग्जिस्टेंस है उसका आपको एक समराइज फॉर्मेट में हाफ A4 पेज या 1 A4 पेज में आपको वो देना पड़ता है. ये टिपिकली होता है लिटरेचर रिव्यू में. अगर हम थोड़ा लिटरेचर रिव्यू के डिटेल में जाएंगे तो जब हम डेफिनेशंस देखते हैं तो उसमें थ्योरी भी इंक्लूड की जाती है. तो कई सारे यूनिवर्सिटियों में वो थ्योरीज लिटरेचर रिव्यू में कैप्चर की जाती है. ऑन दी अदर हैंड, फ्रेमवर्क जो होता है उसमें कंसेप्ट आते हैं और आप क्या मेजर करने वाले वो भी आपको उसमें लिख के देना पड़ता है. तो फ्रेमवर्क इज स्लाइटली एडवांस देन दी theoretical background which some universities or some institutes encourage students to write. ओके. Yeah. ओके सर, थँक यू. Yeah, thank you. विचारा रे, प्रश्न लादू नका, सगळे डाऊट विचारा. मी काही एवढा हुशार नाही, मी तुमच्यासारखाच आहे. Yeah, good afternoon, sir. I had one question regarding while writing the review paper, how many numbers of papers must be you should go through while writing a review paper?
is there any number, minimum Okay. number that must be? Yes, Okay, sir. actually, there is no such rule. It all depends on the quality of paper. I personally believe what I did, I tell you. Immediately after my title, I downloaded 8 theses from European universities because back then, lot of European universities were openly sharing the entire thesis of their students in an open domain. Now today, I see that many universities are curtailing that. They don't share it openly. So first, Yes. I downloaded the thesis. Then what I did, I, to my best understanding, whatever top journals were there, because my PhD was in the field of social science, corporate social responsibility. So whichever journal were there at the leading forefront of the social science and corporate social responsibility, I downloaded 5566 paper per because CSR was a very new concept in India. Although conceptually it was very much valid since the age of Ashoka, but because we had a legislation in India which came in 1998 and 2008 and 2011 and now 2018. So that point of view, the literature was very limited in India. We had very ancient uh, literature available. But in Europe, where it started after 84, CSR as a topic in the world came into literature after 84, so-called a neoclassical CSR, the modern one. So the most of the literature, again, I got it from the European journal because TIS or any other institute had very little publication on that. So I took, I think if I'm not wrong, around 6 paper per keyword. So I reviewed around 17-18 paper and I was very comfortable with those 17-18 paper. तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है सर कि आपको 25 ही हो सकता है, आपको एक अच्छे पेपर से आपको पूरा मिल जाएगा. One Yes, paper sir. can give you around 80% of thing which you are looking for. So it depends how you search. और आई एम डेफिनेटली श्योर कि 10 साल पहले का डेटा और आज का डेटा, आज आपको और ज्यादा डेटा मिल रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत सारा मिल रहा है, तो आपको उसमें से यू हैव टू पिक एंड चूज वेरी वाइजली. और 10 साल पहले उतना नहीं था, तो बट पिकिंग चूजिंग वाज आल्सो रिलेटिवली इजी. अब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फ्लो हो रही है, तो take any 5 or 6 book. You should be comfortable with the journal. It has to be top journal in that field. So you take, say for example, right from 2020 to 2010, 10 साल के उनके what you call जितने भी उसमें इशू पब्लिश हुए, अगर वो क्वार्टरली है तो आपको 40 जर्नल मिल जाएंगे. उसमें से अगर आपको 5 पेपर या 6 पेपर मिल जाते हैं, अब क्या होता है, कुछ जर्नल में आर्काइव आपको मिलता है देखने. अब कुछ जर्नल वाले आर्काइव देते नहीं है, वो पैसे मांगते हैं. तो अगर मुझे 2010 का पेपर चाहिए तो फिर ढूंढने में और दिक्कत होती है. तो आई वुड रिकमेंड, यू नो, जो अभी चालू कर रहे हैं ना पीएचडी, 15 दिन केवल ऑनलाइन में बिताओ. रोज सवेरे 8 बजे बैठने का, 12 बजे खाना खाने का, शाम को 6 बजे तक कुछ काम करने का. एक बार अगर आपने ये सब कर लिया तो फिर आपका आगे का पीएचडी का काम बहुत आसान हो जाता है ना. तो देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ पेपर. इट इज अपॉन how you perceive that as a quality and whether it is addressing your need, what you are looking for. कई लोगों का पहले ही शॉट में लग जाता है सिक्सर, तो बोलता है यार मिल गया तो मिल गया, है ना. जैसे आपको पहले पसंद में अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो आप 10 लड़कियां क्यों देखेंगे, उसी से करो शादी तुरंत. तो वैसे वाला हिसाब है. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. ओके, थैंक यू, थैंक यू. और है कार्य अजून प्रश्न? सर हाँ बोलिए. सर मुझे कंसेप्ट इसमें नहीं समझा. Both are the same things or there is a difference? मैडम आप एक बार रिपीट कीजिए क्योंकि ये दूसरे मैडम का आवाज आ गया था. कैन यू रिपीट प्लीज? Okay, sir. Sir, conceptual framework and theoretical framework, both are the same things or there is a difference? No, there is a difference, madam. The basic difference is that the conceptual framework, the theoretical framework is based on a theory, okay, based on a grounded theory. Whereas, wait a minute, hold on. Okay, so theoretical framework is based on an existing theory, whereas conceptual framework
is something you can develop yourself based on theory. Got it? It is based on theory, but you develop it, you elaborate it more than, so it goes beyond the theory. So that's why it is called as conceptual. जो theoretical होता है उसके पीछे theory है, इसके पीछे theory है पर आपने उसको conceptually modify किया है, तो वो theory आना बाकी है, but उसका pillar theory ही है, but आपने उसको conceptual form में डाल दिया है. Got it? So they are 180 degree apart. 180 डिग्री अपार्ट. ये राम है तो ये रावण है, ये पूरा ग्राउंडेड है, इसकी पूरी थ्योरी आपको मिलेगी, इसकी आपको केवल पार्शियल थ्योरी मिलेगी जिसके ऊपर आपने उसको मॉडिफाई किया है. ये फंडामेंटल डिफरन्स है टीएफ और सीएफ का, इसीलिए उसको कन्सेप्चुअल बोलते. कन्सेप्चुअल म्हणजे काय, ते टेस्ट केलेलं नाहीये कोणी, तो एक कन्सेप्ट आहे, ती एक संकल्पना आहे कोणाच्या तर मनातली. कंसेप्चुअल. मेरा एक रिसर्च पेपर है, वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे, उसका टाइटल ही वही है. मैंने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया था. ऑफ कोर्स इट वाज बेस्ड ऑन अ थ्योरी, बट आई स्टार्टेड विथ द टाइटल ऑफ पेपर एज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बिकॉज इट वाज नॉट टेस्टेड, इट वाज डेवलप. यू कैन डेवलप. हाँ, अगर वो टेस्ट हो गया तो फिर उसकी थ्योरी बनेगी, फिर दैट सीएफ विल बिकम टीएफ डाउन द रोड. बट यूजुअली आप अगर 10 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गए तो 3 या 4 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं, ऐसा होता है. यूजुअली रिसर्च इज ड्रिवन बाय थ्योरी ओनली. कंसेप्ट से आप रिसर्च ड्राइव कर नहीं सकते. कंसेप्ट आते, कंसेप्ट जाते, कंसेप्ट टेस्ट होते, कंसेप्ट फेल होते, कंसेप्ट सक्सेसफुल हुए तो उसके ऊपर थ्योरी बन जाती. तो हर 10 थ्योरी के लिए 3-4 कंसेप्ट तो बनते हैं मैडम. बट ये थोड़ा क्या कहता हूँ, ये कैंडिडेट के स्किल के ऊपर होता है कि वो, एंड दे आर वेरी इजी टू मेक. अगर आपको टीएफ समझ में आए तो सीएफ ये मतलब जैसे अगर आपको छक्का मारने आए तो सीएफ मतलब 1 या 2 रन दौड़ने वाली बात है मैच में. सीएफ इज रिलेटिवली इजी. क्लियर? सर यस सर, लेकिन फिर सर जब हाँ. अगर हमें पेपर जब लिखते हैं तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हम पहले लिखेंगे और बाद में उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ना बनाएंगे. ना ना ना, डिपेंड. आपको रिसर्च, मैंने मेरा जो पेपर लिखा था ना मैडम, इट वाज उस समय जो सिचुएशन आ रही थी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थी, गवर्नमेंट को वो मेजर करना नहीं आ रहा था. मैं ये पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 249 पब्लिक सेक्टर की बात थी उस समय. तब मैंने वो फ्रेमवर्क बना के, तब अपने गोंदिया के वो कौन से पटेल, प्रफुल्ल पटेल साहब डिपार्टमेंट ऑफ हेवी मिनिस्ट्री के थे, तो वो पेपर भी बना, वो उन्होंने एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज भी किया और वो पब्लिश भी हुआ. तो वो मैंने एक वेरी डिफरेंट एंगल में किया था. जरूरी नहीं कि आपको पब्लिश ही करना है, वो एक मेरा एडवेंचरस स्टेप था. वो हो गया उस समय, हो गया, बट इट हैज नथिंग. यूजुअली रिसर्च जब आप करते हो पीएचडी का, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. सीएफ आप अगर थोड़ा डेयरिंग, मतलब आपका रिसर्च हो गया, आपने आपके रिसर्च में भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डाला है और आपको पता चला कि रिसर्च होने के बाद इसका एप्लीकेशन कहीं आ रहा है, तो आप 100% सीएफ बनाइए. मेरा वो एप्लीकेटरी एंगल था उसका. जो उन्होंने बोला कि वो करेंगे, किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, शायद उन्होंने नहीं किया होगा, बट उससे क्या होता है, वी एज ए एकेडमिशियन कैन गाइड द इंडस्ट्री टू टेस्ट सर्टेन कंसेप्ट. बिकॉज वो कंसेप्ट ही वो चलेगा मालूम नहीं है, तो हमको उनको रिकमेंड करना पड़ेगा. जैसा कोई आपको डॉक्टर दवा देता है ना, बोलता है हाँ ये खा लो, अगर नहीं लगी तो 3 दिन बाद और दवा चेंज करके दूंगा. तो वैसे ही कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कोई जरूरी नहीं है कि वो चलेगा ही, क्योंकि वो कंसेप्ट है ना. जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां, वो ऑटो एक्सपो में वो कौन सा मॉडल बोलते हैं, वो मॉडल डालते हैं, वो कंसेप्चुअल मॉडल है. वो एक्चुअल जब प्रोडक्शन में आता है तो वो मॉडल अलग होता है उससे. तो वो कंसेप्ट एक आइडिया के ऊपर, उसमें आइडिया एक मेजर, इमेजिनेशन एक मेजर इनपुट होता है, बट इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन थ्योरी. ऐसा नाही की आप हवा से कोई भी कन्सेप्ट लावले ना, त्याच्यामध्ये थ्योरीचं त्याला फाउंडेशन असतं. पण तुम्ही अजून काहीतरी त्याच्यावर करू इच्छिता म्हणून ते तुम्ही बनवता. बहुत सिंपल है मैडम सीएफ बनाना. अगर आप टीएफ के मास्टर बन गए तो सीएफ बाया हाथ का खेल है. पर हाँ, वो कब बनाना, जब आपको आपके रिसर्च फाइंडिंग्स की अप्लीकेबिलिटी बढ़ानी है, तब. गॉट इट? यस सर. तभी वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. अप्लीकेटरी एंगल में बनता है वो. हाँ, विचारा, मगाशी कोणतरी विचार होतो, वो आप पूछिए, आप बीच में आ गई थी.
Sir, my concept is clear. I also wanted to ask regarding this only. It's clear. Okay, good, good, good. So are we good to go? It's 1:35. Sorry for the delay today. Hopefully tomorrow we will start sharp at 10:30, and tomorrow we will discuss little bit different. One is a how to write proposal for grant, which has nothing to do with your PhD, and then second topic will be ethics while conducting the research or while doing the PhD. In the meantime, So my one kindly question those. Yeah, go ahead, go ahead. Yeah. is, do we have to write theoretical framework for experimental study? No, I think. Oh, of course, yes, because you are conducting an experiment based on certain study, right? There is a theory, है ना? Okay. आपके लिए तो और आसान है, because you will tell what you are going to measure in that. Say you are measuring temperature, you are measuring velocity, you are measuring lumex intensity of light, whatever it may be. So it is easy for मैं आपको बोलता हूँ frankly, doing research in science is one of the easiest thing in the world, provided the candidate has to be very strong in fundamentals of the science. ये बाकी हम जो लोग करते हैं ना, मैनेजमेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, लिटरेचर, इसमें दिमाग पक जाता है मैडम, इसमें बहुत बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है अगर अच्छे क्वालिटी का काम करना है। साइंस में वो नहीं, अगर आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप सही है, आपके इक्विपमेंट कैलिब्रेशन परफेक्ट है, आपने परफेक्ट चूज किया है, तो यू कैन इमीडिएटली क्रॉस 80% थ्रेशोल्ड। तो आपके लिए तो और आसान है मैडम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डालना, बहुत आसान है आपके लिए। तो आपको तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम है आप क्या मेजर करने वाली हो। हमको मैनेजमेंट में हमको देखना पड़ता है, फिर उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है। आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको थ्योरी ऑलरेडी मिल जाएगी, तो आपका तो 4-5 ब्लॉक में बन जाएगा मैडम। साइंस का टीएफ इज वेरी वेरी इजी, ऑलवेज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो यस, आंसर इज यस, और बनाइए और डालिए। हो गया? तो अगेन Okay, sir. आप बनाइए, जिनको बनाना है बनाइए, ईमेल कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। जिन लोगों को आज सवाल पूछने नहीं आए, हम लोग कल भी आपको टाइम देंगे। कुछ लोग आप शर्माते होंगे तो शर्माइएगा मत, लिख लीजिए कागज में, कल पूछिए पढ़ के, वी विल आल्सो क्लियर द डाउट टुमारो। ठीक है? So, madam, thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir, for today's Thank you. session. उद्या आपण 10:30 चालू करूया सर पुढचं. Yes, yes, अगदी ठीक नक्की. आहे. हाँ? Okay, sir. Okay, thank you, sir. Friends, now we will end the meeting. मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। आप 2 बजे शार्प चालू करिए नेक्स्ट सेशन के लिए। सेम लिंक से आपको ज्वाइन करना है। ओके? Okay, ma'am. ओके।